I want to talk to you about a topic which is coming straight from the Upanishads, पर हमारे वर्क प्लेस में हमारी परफॉर्मेंस में इसका एक बहुत बड़ा रोल है. I want to talk to you from the concept of being a workplace monk, जिसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, please see that, and how Aham Brahmasmi can help it. What is Aham Brahmasmi? Let us understand that. Who am I to explain you Aham Brahmasmi? पहले वो भी बता देता हूँ. I am not a saffron clothed sadhu baba, expert in shastras and Vedas and Upanishads and Vedanta, but I have been a spiritual seeker for the last 11 years. I have been a banker for most of my career, and now I am a corporate trainer also. But in the last 11 or maybe 10 or 11 years, I have been a seeker. I have been reading a lot of books, but more importantly, I have been meditating, introspecting, writing. I have written a book also. I keep on doing that on spirituality. I have been a seeker. I have been asking questions like who am I, why am I, what is the purpose of life, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान है भी कि नहीं है. Lot of other things I have been asking. Now I must also tell you here, I am a master's in psychology, specializing in organizational behavior, and I am doing my PhD on the topic meditation and its impact on emotional intelligence, especially in the context of a workplace employee. अहम ब्रह्मास्मि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि क्या है कि एक पानी की बूंद को अगर हम समंदर में डालें तो वो पानी की बूंद समंदर में है नहीं बोलेंगे, वो समंदर बन जाएगी. समंदर बन जाएगी. It will acquire the status of being an ocean. It will not be a drop in the ocean. Yes or no? Do you agree with me or not? Similarly, now this is one example. Second example, अगर कोई ट्यूबलाइट है कोई स्ट्रीट लाइट पर, शायद किसी झोपड़ी वगैरह वाले एरिया में एक स्ट्रीट लाइट पे एक ट्यूबलाइट है और एक ट्यूबलाइट है एक बहुत बड़े बंगलों में, तो वो ट्यूबलाइट इस स्ट्रीट लाइट की ट्यूबलाइट को ये नहीं बोलेगी मैं अमीर हूँ तू गरीब है. क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने वाली तो वही इलेक्ट्रिसिटी है, सेम इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज नो डिफरेंस. Similarly, it is stupid when humans call each other or rather discriminate with each other on certain areas. पर ठीक है, वो अपने उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे. विल कीप इट सिंपल हियर. अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कौन हूँ. मैं ये शरीर, दिस बॉडी, ये तो नश्वर है ना. इस बारे में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते आते हैं. जब हम मजाक भी करते हैं तो रिलीजन के पुराने डायलॉग्स उठा के सब मोह माया है ये सब बोल के अपने मजाक कर लेते हैं. पर ये शरीर तो नश्वर है. ये शरीर तो आज ये मेरे हाथ नहीं होंगे, टांग नहीं होगी, तो भी मैं तो मैं ही हूँ. दैट फीलिंग ऑफ मी, मुझे प्यास लगी है तो मुझे ही लगेगी, मुझे आधे प्यास लगी है ऐसा तो नहीं होगा. आई विल बी द सेम मी, द सेम अनुराग मेहता, राइट. दिस बॉडी is not me. This body is run by something called, well, people call it God, I call it life, zindagi, super consciousness, divine consciousness, whatever name you want to keep. God for me is an overused term. I'm not a religious person anymore, so I don't want to get into religion here. But I'm certainly spiritual, no doubt about that. So, what is running me is some energy, the same energy who's created the whole universe. अलग नहीं होगा ना, वो एनर्जी अलग, ये एनर्जी अलग, एक ही एनर्जी ने सब कुछ क्रिएट किया. अब वो एनर्जी इंटेलिजेंट भी है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट्स गेट कैरीड इन दैट एनर्जी. मुझे ये चीज़ समझ नहीं आएगी क्योंकि अगर हर इंसान को ये फैक्ट समझ में आ गया कि भैया ये तो मैं तो जैसे पानी का बूंद समंदर में बन के समुंदर बन गया, वैसे ही इस पूरे सिस्टम में द होल यूनिवर्स एक ही तो है. दैट एनर्जी, लाइफ, भगवान, जो भी बोले. ये वर्क प्लेस में कैसे काम आएगा? स्टे विद मी फॉर 2 minutes, आई टेल यू हाउ इट विल कम यूजफुल इन योर वर्क प्लेस. सो मैं अलग हुई नहीं उससे, क्योंकि पानी की बूंद समंदर में जाके समंदर बन गई. मेरे तो वो तो समंदर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो समंदर में ही हूँ. आई एम ऑलरेडी इन द ओशन. द फिश इन द ओशन is made up of everything that ocean is.
Whatever raw material was required to make that fish came from the ocean. I am life. I am not separate from life. इसको थोड़ा संभाल के रखते हैं पॉइंट को, ये एक ही बार में समझ में ऐसा नहीं है, पर अपने को काम कैसे आएगा वो समझ लेते हैं. नाउ इन माई जॉब, इफ़ आई हैव सम फियर्स अबाउट लूजिंग माई जॉब, इफ़ आई हैव सम फियर्स कि मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, इफ़ आई हैव अ माइंडसेट मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, पैसा तो पूरा चाहिए इनकम, लेकिन ऑफिस जाना पड़ेगा बिकॉज शायद मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज मे बी आई डोंट हैव अ गुड बॉस, मे बी आई एम नॉट एंजॉइंग माई जॉब, मे बी आई डोंट हैव अ गुड प्रोफाइल, मे बी माई कॉलीग्स और कस्टमर्स आर नॉट गुड, या शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं कोई भी काम करता हूँ ठीक से नहीं होता है, ऐसा विचार कुछ भी मेरे मन में है. तो ये समझ लें दैट द ओशियन and the drop are not two entities, meaning that ocean will never, that drop of water will never drown in the ocean. ये जो डर है कि मैं जॉब पे नहीं गया तो मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे होम EMI का क्या होगा, मेरे कार EMI का क्या होगा, इसका क्या होगा, खर्चे का, बच्चे की स्कूल फीस वगैरह होगा, खर्चे कहाँ से आएंगे, ऑफ कोर्स उनकी चिंता करनी है, उसके लिए कुछ तो करना ही है, बट ये स्लॉक करने वाली बात नहीं है. अहम ब्रह्मास्मि आपको कहाँ हेल्प करता है कि भाई मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, एवरीबडी इज़ गॉड, एवरीथिंग इज़ गॉड. हाउ कैन एनी प्लेस बी विदाउट गॉड? ओशन में कौन सी ऐसी जगह होगी जो ओशन नहीं है? See, it has taken me a lot of years to understand this concept. If you're not getting this, it is absolutely okay. बट इसका काम ऑफिस में कैसे लेना है ये समझ लें कि जो हम डर के काम करते हैं ना, उसको छोड़ना पड़ेगा. डर के काम नहीं करना है. There is another video in my meditation session playlist where you will find much more detail about Aham Brahmasmi, where you can understand it better. पर मेरे को अगर ये समझ में आ गया कि मैं कभी भी डूबूंगा नहीं, मैं कभी भी मरूंगा नहीं, 3 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान मुझे मिल ही जाएगा, उसके ऊपर भी जो चाहिए वो मिल जाएगा. बट ऐसा कोई ऊपर से RBI का गारंटीड, भगवान की RBI का गारंटीड बॉन्ड लेके नहीं आए थे कि जीवन में सिर्फ सुख रहेगा, दुख नहीं होगा. प्रॉब्लम ये होती है हमें दुख नहीं चाहिए. The only reason for unhappiness is the fact that there is a desire that there should be no unhappiness in life. I'll repeat this. The only reason for unhappiness in life is the desire that there should not be any unhappiness in life. How will there not be unhappiness? How will there not be a dip? ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे, चलेगा दोनों. मैं ये इच्छा जो कर लेता हूँ ना कि नीचे कुछ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल को रोक देता हूँ. बिकॉज मैं भागना चाहता हूँ और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, पर मैं रोक देता हूँ कि ऐसा करूँगा तो गिर जाऊँगा. और फिर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, इफ़ यू हैव नॉट फेल्ड यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन योर लाइफ. वेरी गुड, वेरी डिप्लोमेटिक. अरे फेल होने से क्या प्रॉब्लम है? आपको जब ये समझ में आ जाएगा दैट यू आर नॉट द ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको कुछ होने वाला नहीं है. आपका जीवन चलता रहेगा, मर नहीं जाओगे, सड़क पे नहीं आ जाओगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. आप काम में पूरी तरह से एंजॉय करो. सी माई वीडियो ऑन वर्क प्लेस मॉन्क, वर्क लाइक अ वर्क प्लेस मॉन्क. एक्सीलेंस के पीछे भागें, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, जितनी आएगी उतनी आ जाएगी, और चाहिए और मिलेगी. मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर डर के नहीं. नो स्पीशीज ऑन अर्थ लिव्स विद कॉन्स्टेंट फियर ऑफ सर्वाइवल. Humans being the best species of God, it is a disgrace, it is an insult to God to live with that mindset. आप चिंता मत करें, आपको कुछ नहीं होगा, आप काम करते रहें, फोकस ऑन वर्क. अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट इतनी सी देर में मैं इतना ही समझा सकता हूँ. एज आई सेड, देयर आर मोर वीडियोज़. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्लेस मॉन्क जिसके ऊपर एक पूरा चैनल डेडिकेटेड है, उसके ऊपर भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं. कुछ ना कुछ वर्क प्लेस की प्लेलिस्ट में जो भी ब्लॉग्स हैं आप उनको देखते रहे, सभी इंटरलिंक्ड है. द कॉन्सेप्ट इज इंटरलिंक्ड. When you see 4 or 5 such blogs, 4 or 5 such videos, you will understand the concept. Blogs निकला because anuragmehta.com पे बहुत सारे blogs हैं. इस point पे मेरे हमेशा blog और video में confusion रहता है. So see that website also, read some blogs if you are an avid reader. Otherwise videos is good enough. God bless you. Aham Brahmasmi is a concept. Just like that drop, you are a part of this system. You are not different from the system. You are not a drop in the system. You are the system. कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद दैट वाईफाई सिस्टम. भगवान ने बना के फेंक नहीं दिया आपको.
कनेक्शन रखा है, दैट वाईफाई कनेक्शन which is called instincts, which is called a thought coming from just about anywhere, which is called intuition. That is the direct connection that God has with you. It acts like a GPS system and gives you direction in life. थोड़ा कनेक्टेड रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्टेड रहें, डर से दूर रहें, and then you will see how a workplace monk remains happy, how a workplace monk understands the concept of aham brahmasmi and lives fearlessly. अगर ये थोड़ा हैवी है, प्लीज़ डू सी अदर वीडियोज़. दिस इज़ नॉट एट ऑल हैवी कॉन्सेप्ट. और आपके वर्क प्लेस में सक्सेस, बिकॉज फियरलेसनेस आ जाएगा तो सक्सेस अपने आप आएगा, बिकॉज पंगे लेने की आदत हो जाएगी. पंगे लोगे तो सक्सेस आने वाला है बॉस. डर डर के कंफर्ट जोन में मत जियो. कंफर्ट जोन पे बहुत डायलॉग भेजते हैं ना हम लोग व्हाट्सएप पे. कंफर्ट जोन इसलिए है बिकॉज फियर है. कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का कॉन्सेप्ट में आपको अहम ब्रह्मास्मि हेल्प करेगा. Stay connected with me on this channel. I'll keep on posting many more videos which will really help you to understand the reality of life, और किस गलत कॉन्सेप्ट में चाइल्डहुड कंडीशनिंग और सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से हम अजीब से डर में रहते हैं. उस डर से निकलना बहुत ज़रूरी है. God bless you. Have a great career. Have a great life. Goodbye.